Okay, sir. We are live. Good afternoon, viewers. Today we are again back. I am Gagan Nagpal, and with you today we are going to celebrate the International Women's Day. I know you want to say that every day is the Women's Day. I accept it. But today is a special day for all our mothers, sisters, friends, for everybody. So, viewers, today with me is my staff, my department of gynecologist from Shri Balaji Action Medical Institute is with me, and they will tell you about all the things a woman can have as a disease, as a uh, as a uh, as a you can say as a beauty, whatever they can do it for themselves, for herself. We will discuss everything. We will take the tips on every aspects of the woman, how they want to look beautiful, how they have to do, how they have to maintain. Their work is not only to have a family, their work is many more. Do not consolidate the woman as a in the just family jobs. They have many things to do and they are doing it, but they forget herself while doing the duty of yours. So let's welcome my all the gynecologists on this show and wishing them a very happy International Women's Day. Happy International Women's Day to all the consultants who have joined us to tell the all the globe that how they have to maintain themselves. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you And so much, today, Gaganji. thank you. And I request Dr. Ruby Serra to ma'am tell us that about the women once if they have a bleeding, that how they have to consider that bleeding. It is really very scary, or they have to take care of them, and how they have to take care of them. We want to know from you, ma'am. First of all, happy Women's Day to all of you. Woman is a symbol of power, a beautiful creation of God. But you are also creating a beautiful bundle of joy that is a baby. As you are taking care of all the family members, you must take care of yourself also. The bleeding, any bleeding other than the menstruation should be considered as abnormal. Any bleeding which occurs after the menopause should also be considered as abnormal. So if the bleeding is there, you should not take it lightly. If you do not take it seriously, you might land up into so many complications. So at every age, if the bleeding is there, then you have to consider that something is wrong with your uterus and the other genital organs. So you must take care of yourself and immediately visit the hospital or your gynecologist. Normal bleeding lasts for 3 to 5 days, and only 10 to 80 ml is the menstrual flow. But if it is more than that, if the duration or the frequency or the amount of the blood loss is more, that should be considered as abnormal bleeding. Then you have to assess yourself what is the reason. And at every age, suppose it is a puberty, then the puberty menorrhagia can be there. If it is a girl who's having a bleeding off and on and having excessive bleeding, she should also visit the gynecologist. In case you are in a reproductive age and you are having a bleeding, the fibroid, the polyps, the miscarriages, and if you have a multi-load insertion, that can cause bleeding, which is abnormal. If you do not take care of it, then you might land up into anemia, and then further complications can occur. Any bleeding which occurs after the menopause or near the menopausal age, that is not to be taken as a light, because some people say that it is your periods are going, so the bleeding will automatically become normal, so you don't there is no need to visit a doctor. But it is not the truth. You have to visit a doctor, get yourself investigated, and treat accordingly. If you have already achieved menopause, the menopause should once you have achieved a menopause and it's been around 1 year and you haven't had bleeding, say it is normally around 48 years to 52 years. But if any bleeding which occurs after amenorrhea, that is no bleeding for 1 year, and if there is a bleeding again, you should consider as abnormal, and you should immediately take a help of the gynecologist.
Then what are the various modalities, which are the investigation which you should undergo? Ultrasound is the key point that must be done if you have any kind of bleeding. If you have bleeding in the reproductive age, the blood urine pregnancy test and the blood pregnancy test should be immediately done to rule out that there is no tubal pregnancy or there is no miscarriages. If you have had an ultrasound, and if your ultrasound shows that there are fibroids or there is any ovarian mass, or the endometrium is thickened, and then it should be considered as abnormal and should be treated accordingly as per the gynecologist. In case you have undergone this ultrasound and some mass or the tumor is found out, then it is mandatory to get some tumor markers, and CT scan, MRI, all should be done. And you should take advice of the gynecologist, who might advise you to go for hysteroscopy and DNC, which is a cleaning which is just seeing through the through the camera into your uterus and finding what is the cause. Is it a polyp? Is it a endometrial hyperplasia or any abnormal growth in the uterus? In case such thing is there, then your gynecologist is going to take a sample of this, and she's going to just clean it, and the final whatever curatings are obtained, they are sent for the histopathology, and further treatment is guided according to the biopsy report. So my advice to all women: never take your bleedings lightly. It is a serious concern. You might have anemia and you will not be able to take care of yourself and your family. Thank you, ma'am. It is really a wonderful message. Why it is so wonderful? Because we do not take care of these things. Viewers, जो हमारे हिंदी में भी श्रोता हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रूबी ने सजेस्ट किया है कि कोई भी ब्लीडिंग जो कि 2-3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करे, उनको लाइटली ना लें और जरूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले. Thank you, ma'am. Thanks a lot for your such a wonderful advice. I request Dr. Poonam Agarwal to share with us for another tip for the woman. Once again, hello. I welcome all the lovely women on the occasion of International Women's Day. All women are lovely and very precious gifts of God, and it's our, as doctors, it's our duty to keep them happy and healthy. And this small event is a step to achieve it. So nowadays, a very important, very common problem which is seen in the young girls is PCOD. And all women become very scared and troubled. They feel very troubled whenever doctor or someone says that you are suffering from PCOD. So what is it? It is a medical condition found in young girls due to hormone imbalance. So हर महिला की बॉडी में एक हार्मोन का एक डेलिकेट बैलेंस होता है, जो उसकी मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका वेट और उसकी फर्टिलिटी और दूसरे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखता है. पीसीओडी में यह डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाता है. अब इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है ओवरीज. ओवरीज में छोटे छोटे हर नॉर्मल ओवरीज में हर साइकिल में एक ओवम बनता है, एक एग बनता है जो मैच्योर होकर रिलीज होता है, और उसकी वजह से रेगुलर पीरियड्स आते हैं और बाकी के फंक्शंस चलते हैं. बट पीसीओडी में यह एग मैच्योर नहीं होते और छोटे छोटे कई सारे एग इकट्ठे हो जाते हैं ओवरीज में और वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं. तो इसी वजह से इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. जब ये सिस्ट बन जाती हैं तो उनमें से एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बॉडी पर एक्सेस हेयर ग्रोथ आने लगती है, जहां पर फीमेल ग्रोथ पैटर्न नहीं, हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहां होती है, जिसे हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं. एक्ने हो जाते हैं, बड़े बड़े मुहासे आ जाते हैं, काले धब्बे हो सकते हैं स्किन पर, और इरेगुलर पीरियड्स सबसे कॉमन जो यंग गर्ल्स में प्रेजेंट होता है. और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं उनको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि एग रिलीज नहीं हो रहा. तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है. एग रिलीज नहीं हो रहा, सिस्ट से हार्मोन रिलीज, एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उससे फिर और सिस्ट बन रही है. तो इस विशियस साइकिल को हमें ब्रेक करना होता है. और इसका क्या कारण है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आजकल की
faulty lifestyle, faulty eating habits और sedentary lifestyle प्लस स्ट्रेस भरा जीवन, ये सारे मिलाकर हमारी बॉडी में इसको पैदा कर देते हैं। और कोरोना एपिडेमिक के बाद तो जैसे कि पीसीओडी का भी एपिडेमिक आ गया है। हर ओपीडी में हमें 10-12 छोटी लड़कियां पीसीओडी लेकर आ रही हैं। तो हमें इसको रोकना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना और इसका उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या किया जाए? जब भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लेनी है। वो हमें कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगी, अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हम उसकी कितनी सीवियरिटी है और हम उसे अपना लाइफस्टाइल से ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं या हमें कुछ मेडिसिन भी लेनी है, ट्रीटमेंट भी लेना है। जब ये इसकी सीवियरिटी ज्यादा है तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, उसमें कुछ हार्मोन पिल्स दी जाती हैं, कुछ और मेडिसिन हैं, विटामिन हैं, जिनको लेने से ये ठीक हो जाएगा, पीरियड्स आ जाएंगे, वेट भी लॉस हो जाएगा। लेकिन ये टेम्परेरी इलाज है, इसका परमानेंट इलाज हमारी लाइफस्टाइल से ही ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग हम उसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं जो कंसीव नहीं कर रही, वो इससे बहुत ही परेशान हो जाती हैं। उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि इसका इलाज है, इतना दुखी ना हो। अगर किसी ने कह दिया आपको पीसीओडी है, आपने दिखाया अपने को, आपको ये प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से ये और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका ठंडे दिमाग से उसकी डॉक्टर की बात सुनिए, वो क्या एडवाइस कर रही हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। उन्होंने कहा कि इतने घंटे एक्सरसाइज करना है, 40 मिनट रोज एक्सरसाइज करना है, तो करिए उसको। जो जो चीजें अवॉइड करने को बोला है, फैटी फूड है, फास्ट फूड है, उसको अवॉइड करना है, वो इम्पोर्टेंट है। दवाइयों के साथ साथ, खाली दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता है पूरा। और अगर किसी वजह से बिल्कुल भी एग नहीं बन पा रहा है, ओवरीज बिल्कुल नहीं फंक्शन कर रही है, इतना सीवियर डिसीज है, तो उसका भी इलाज है, उसका भी आईवीएफ से बेबी हो सकता है। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर की सलाह लें और उसे फॉलो जरूर करें। तो छोटी लड़कियां, टीनेजर्स जो इसके साथ आ रही हैं, वो एकदम से ही पैनिक हो जाती हैं कि ये मेरी बॉडी में क्या हो गया, मुझे कितनी बड़ी बीमारी हो गई, मेरे को अनचाहे बाल आ रहे हैं, मेरा फेस खराब हो गया एक्नी की वजह से। तो उनके लिए भी मेडिसिन है। उनको मैं ये सलाह दूंगी कि घर में बना सिंपल दाल, रोटी, सब्जी, दही, सैलेड खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। अच्छा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल, ये अवॉइड करें। स्नैक्स, अगर बीच में भूख लगती है खाने के, तो स्नैक्स में फ्रूट्स, सैलेड, नट्स और ओट्स प्रेफर करें, बजाय इसके कि चिप्स और चॉकलेट और आइसक्रीम, ये अवॉइड करें। और जो उनकी मदर्स हैं टीनेजर्स की, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। वो भी ये सोचने लगती हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई मेरे बच्चे को, और बिल्कुल पैनिक करने लगती हैं। तो बच्चे को समझाने की जरूरत है। तुम अगर एग्जाम दे रहे हो, पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हो, तो बीच में से आधा घंटा निकालो, एक्सरसाइज करो। घर पर ही एक्सरसाइज पॉसिबल है, किसी भी तरह की एरोबिक्स कर लो, डांस कर लो, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो भी बच्चे को पसंद हो। बाहर जाके थोड़ी देर खेल भी सकते हैं। तो ये मदर्स को भी समझना चाहिए कि पैनिक ना करें, उसका सॉल्यूशन करें, बच्चे को उठाएं, थोड़े थोड़े देर बीच में उसको अपना काम करने दें, कि पढ़ते पढ़ते बीच में से उठे और जाके थोड़ा सा उनकी हेल्प भी कर दे मदर, उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें इसको प्रिवेंट करने में और ट्रीट करने में इम्पोर्टेंट होती हैं। डॉक्टर पूनम, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि बच्चों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज और अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे मदर्स का भी अगेन बहुत बड़ा रोल है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि मदर्स भी कहती हैं कि आप दवाई दे दीजिए। दवाई तो है, उसकी दवाई हम देंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, उसका मैनेजमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म।
what I am saying is that what mother gives to the baby, she is going to have that. तो mothers को समझना चाहिए dietitian से proper supervision लेके अपनी उनका diet से weight control किया जा सकता है. बिल्कुल. मदर्स जो खिलाएंगी बच्चे वही खाएंगे. अगर आप ऊपर से वैसे तो खिला रहे हो पर बीच में घी डाल दिया या अदर चीज या और शुगर डाल दी तो बच्चे की सब मेहनत बेकार है. तो इसलिए मदर्स को उतना ही एनलाइटन होना चाहिए जितना कि बच्चों को होना चाहिए. यस, डेफिनेटली. तो इस समस्या का समय पर समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा पाया गया है रिसर्च के द्वारा कि आगे जाके इन महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज के ज्यादा इंसिडेंस होते हैं. इसीलिए हमें इसका समय पर समाधान करना जरूरी है. थैंक यू मैम. थैंक यू व्यूअर्स. ये जो डिजीज है ये आज की एक दूसरी महामारी है जो कि हमारे देश की महिलाओं में पाई जा रही है. तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली डालें. ऐसी कोई भी समस्या होती है, यंग एज पर ये ज्यादा पाई जा रही है, तो बिना झिझके जरूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें. Thanks a lot, ma'am. This is a very important message to all the women of the globe. And now we want to ask Dr. Renu Gupta कि मैम सब इसे लेबर पेन कहते हैं. जब भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है, लेबर पेन, क्या ये वाकई पेन है या एक खूबसूरत एहसास है? We want to know from you today, ma'am. यस गगन जी, सबसे पहले मैं आज इंटरनेशनल विमेन डे पर सब विमेन को विश करना चाहूँगी. और आज मेरा मैसेज जैसे गगन ने बताया कि हम लेबर पेन्स से रिलेटेड बात करेंगे. आप फ्रेंड्स, आप खुद या आपके परिवार में या आपके अड़ोस पड़ोस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल जब 9th मंथ तक पहुंचती है तो वो पैनिक हो जाती है कि आगे मेरा क्या होगा, लेबर पेन्स में मैं कैसे उस स्ट्रेस को ले पाऊंगी. इनफैक्ट बहुत सारी फीमेल्स तो आकर ये भी कहती हैं कि मुझे डायरेक्ट सिजेरियन करा दो, मुझे लेबर नहीं लेना है. फ्रेंड्स, आज जब इंटरनेशनल वीमेन डे पर मुझे मौका लगा तो मुझे यही लगा कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाऊं कि माना मदरहुड की जर्नी में लेबर सबसे डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसको हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर से बहुत इजीली पार कर सकते हैं. और अगर हमें लगता भी है कि हम इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर विथ यू. ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, इतना कॉमन एक टेक्निक हमारे पास है, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, जिसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं, उसके थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं. इसके बारे में भी कुछ फीमेल्स जिन्होंने सुना होता है तो वो मिथ के साथ आती हैं कि ये पेनलेस इंजेक्शन जो बैक पे लगाएंगे इससे बैक एक हो जाएगा, ये मेरे बच्चे को हार्म कर सकता है, इससे तो मेरे लेबर पेन्स ही रुक जाएंगे. फ्रेंड्स, इन सब पर हमें ऐसे नहीं ध्यान देना, हमें इसका प्रिंसिपल समझना है. एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बेसिकली जब आप एक्टिव लेबर में हैं तो हम आपके बैक में एक फाइन ट्यूब के थ्रू एक मेडिसिन लो डोज में इन्फ्यूज करते हैं. उस मेडिसिन से जो यूट्रस में लेबर पेन्स आ रहे हैं उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता, वो नहीं रुकते हैं. बट जो लेबर पेन्स की सेंसेशन मदर को जा रही है, जिन नर्व्स के थ्रू जा रही है, बैकबोन पर हमने उन नर्व्स को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया ताकि वो पेन की सेंसेशन आपके ब्रेन तक नहीं गई. दैट मीन्स कि जो अंदर प्रोसेस चल रहा है लेबर पेन्स का वो एज इट इज चल रहा है, बट मदर को परसेप्शन नहीं हो रही पेन की. उससे वो कंफर्टेबल है, उससे वो रिलैक्स्ड है, और उसको जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसमें कि पेन स्टार्ट हुए और जब डिलीवरी टाइम हुआ उस टाइम का जो 8-10 घंटे का ड्यूरेशन है जिसमें मदर स्ट्रेस्ड हो जाती है, लेबर पेन्स नहीं ले पा रही होती, वो एरिया उसका काफी कंफर्टेबल हो जाता है. ये जो मेडिसिन हम बात कर रहे हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की, ये टोटली मदर एंड बेबी फ्रेंडली है. इसका मेडिसिन का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. प्लस ये आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को रादर शॉर्ट कर देती है. क्यों? क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स हो गए तो आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे थे, स्ट्रेस की वजह से एरिया टाइट रख रहे थे, बेबी को जो पैसेज था वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, उसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन से फर्स्ट पार्ट हमारा रिलेटिवली शॉर्ट हो जाता है, डिलीवरी टाइम रिलेटिवली पास आ जाता है. प्लस कंफर्ट लेवल की वजह से पेशेंट की माइंड पर जो इम्पैक्ट आता है उससे स्मूथ नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है. तो ये जो कंसेप्ट है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का, ये अवेलेबल है हर जगह.
हमें इसके साथ जुड़े हुए मिथ पर ध्यान नहीं देना है, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको फोकस करके हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम अपने नॉर्मल वेजाइनल स्मूथ वे से जो बेबी को बंडल ऑफ जॉय को हम पा रहे हैं उसको हम नेचुरल वाया नेचुरलिस्ट ले पाएं। आज इस उपलक्ष्य में मैं आपको यही मैसेज दूंगी, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से अपने आप को बचा कर रखें और आपके सराउंडिंग्स में कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहें और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कहें। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। अभी तक जो हमने ओपनिंग रिमार्क से शुरू किया था, सो डू नॉट कंसीडर लेबर पेन इज पेन, इट इज ए जॉयनेस, इट इज ए ब्लिस, सो ऑल इज वेल, टेक केयर। सो डियर व्यूअर्स, do not worry about these things, these are small things, the life is something different, so enjoy this sort of also a labor pain. Thank you ma'am for telling us about the such important topics of the women. And I now request Dr. Sadhna Singhal, she is also telling us that are you really ready for the pregnancy? Ma'am, we want to know a view from you and let our viewers know that when they are ready for the pregnancy. Thank you, Gaganji. Thank you, Gaganji and team, for giving me this opportunity to speak upon this beautiful topic. And happy Women's Day to all pretty women who are listening, who are with us, who have joined with us. What is preconceptional counseling? Preconceptional counseling is a meeting with a doctor when you are planning for a pregnancy. It should be at least 3 to 6 months prior to get pregnant. It is very common in Western countries, but in India, it is at infancy stage. So मैं इस अवेयरनेस को थोड़ा स्प्रेड करना चाहूंगी क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गए हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं आपको अपने डॉक्टर से एक मीटिंग रखनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि हमारा सेफ मदरहुड रहे, हमें प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर विल टेक योर थरो हिस्ट्री, विल एग्जामिन यू थरोली, विल टेक द सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस to see your medical fitness, you are going to pregnant to avoid any high risk factor. Risk evaluation will be done and he will give you folic acid supplementation. एक छोटी सी टैबलेट होती है 5 mg की, अगर आप फॉलिक एसिड प्री प्रेगनेंसी लेते हैं एटलीस्ट आपको 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए और ये आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होते हैं? जो हमारे ब्रेन और स्पाइन के डिफेक्ट्स होते हैं, दीज आर वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। अगर हम ये एक छोटी सी टैबलेट 3 महीने पहले स्टार्ट कर लेते हैं तो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को काफी हद तक रोक सकते हैं। अब आगे आता है आपकी हिस्ट्री पर, आपके पीरियड्स कैसे रहते हैं, आपके पीरियड रेगुलर रहते हैं या इरेगुलर रहते हैं। जैसे डॉक्टर पूनम ने अभी बताया, अगर इरेगुलर पीरियड होते हैं तो यू माइट बी ए केस ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी में आपको कंसेप्शन डिफिकल्ट हो सकता है, तो इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर प्रेगनेंसी ताकि आपका कंसेप्शन अच्छा रहे और फिर आपकी प्रेगनेंसी आगे बिना रिस्क के चलती रहे। और आप में अगर कोई भी डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीज कोई भी है, जैसे आपका डायबिटीज हो गया है, थायराइड हो गया है, एपिलेप्सी है जिसमें किसी पेशेंट को सीजर्स आते हैं, इन सब डिजीज को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए। स्पेशली थायराइड एंड डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड, अगर आपका थायराइड एंड डायबिटीज पेरी कंसेप्शन पीरियड में, पेरी कंसेप्शन पीरियड क्या होता है? जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो उससे उसके आसपास वाला पीरियड, तब आपका थायराइड और शुगर नॉर्मल रहने चाहिए। शुगर लेवल नॉर्मल होंगे, थायराइड लेवल नॉर्मल होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में जो बच्चे को बर्थ डिफेक्ट आने का रिस्क होता है वो कम हो जाता है। और अगर आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, तो आप कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं उसमें आपको स्विच करना होता है इंसुलिन पर। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। पेशेंट कभी कभी डायबिटिक पेशेंट हम लोगों के पास कंसीव कर आ जाते हैं, किसी कंडीशन में जब शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है, उनका HbA1c बहुत हाई होता है, तो हमें प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी पड़ जाती है। तो अगर आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो हम अपने आप को एक रेडी रखेंगे कि अब हमें प्रेग्नेंट होना है और हमारी प्रेगनेंसी आगे स्मूथ जाएगी। Nowadays society is changing rapidly. लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो गया है लोगों का। मोस्ट ऑफ देम वी आर सेडेंटरी वर्कर। तो ऐसे में हमें अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। वी हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। सोसाइटी में ये मिथ है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, पर हम मेडिकली आपको एक्सरसाइज करना होता है जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता। बल्कि जब डॉक्टर के गाइडेंस में आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हो तो डॉक्टर के गाइडेंस में आप प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रख सकते हैं जो आपके लिए सेफ होती हैं।
तो ये इस वाले मिथ को हमें हटा के एक्सरसाइज करना है, उससे हम ओवुलेशन बढ़ता है, इनके ओवुलेशन के चांसेस बढ़ते हैं, तो हेंस कंसेप्शन बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में खाने पे डॉक्टर पूनम ने काफी एलोबरेट करके बताया है कि हमें खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो वी हैव टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट, कीप योरसेल्फ हेल्दी। वेल बैलेंस में ईट लॉट ऑफ ग्रेन्स, वेजीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड कीप योर डाइट लो कार्ब डाइट। आप फैटी फूड अवॉइड करेंगे, फास्ट फूड अवॉइड करेंगे, तो बेसिकली आपको हेल्दी डाइट लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, कहीं पर कोई मेंटल रिटार्डेशन, कोई फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड कोई या स्पेशल चाइल्ड कोई है, तो उस हिस्ट्री को भी शेयर करना बहुत जरूरी होता है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको एक जेनेटिक काउंसलिंग लेने के लिए बोलेंगे। उस जेनेटिक काउंसलिंग में कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि हम प्री प्रेगनेंसी उन चीजों में कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, और कभी हमें अपना एक मैप बना के रखते हैं। जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हो, कुछ जेनेटिक डिजीजेस के टेस्ट होते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं, तो उनसे हम आगे एक सेफ हमारा मदरहुड रहेगा, हमें एक हेल्दी बेबी मिलेगा। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स वो आपके देखते हैं। आपका ब्लड प्रेशर देखते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो जैसे हाइपरटेंसिव हुए, या यहाँ पर मैं कुछ डिजीज और ऐड करना चाहूंगी, आपको कोई रीनल डिजीज है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, तो ये सब आपको शेयर करना चाहिए आपके डॉक्टर से। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिन पे आप मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस आर सेफ इन प्रेगनेंसी, पर कुछ मेडिकेशंस चेंज करे जाते हैं बिफोर प्रेगनेंसी जो कि प्रेगनेंसी को हार्म ना करे। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम स्विच टू सेफ मेडिकेशन जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बेटर रहेंगे। वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ओबेसिटी भी एपिडेमिक की तरह ही है कि लोगों का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज का लेवल कम है, तो ओवरवेट और अंडरवेट दोनों प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा हार्मफुल रह सकते हैं। अगर आप अंडरवेट हैं तो अपने वेट को ऑप्टिमाइज करें अच्छा न्यूट्रिशन लेके, और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको जंक अवॉइड करना है और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है। इट इंक्रीजेस योर ओवुलेशन एंड हेंस कंसेप्शन, तो ये आपको बहुत फायदा करता है। ओवरवेट होते हैं तो कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस भी आने का डर रहता है, जैसे डायबिटीज आ जाती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, हाइपरटेंशन आ जाता है। तो अब अगर अपना वेट आप प्रेगनेंसी से पहले ही थोड़ा कम कर लेते हैं तो आपकी वो ब्यूटीफुल जर्नी जो मदरहुड के लिए होती है वो थोड़ा स्मूथ होती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब डॉक्टर के पास जब आते हैं तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, मेनली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एंड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में मेनली पेल्विक स्कैन कि यू सी द कंडीशन ऑफ यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज। अगर इन तीनों में कहीं पे भी कोई एबनॉर्मेलिटी है तो इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी से पहले ही हम उसका ध्यान रखेंगे। अब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में सबसे कॉमन सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में मेनली कंसर्न विद हीमोग्लोबिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, मेनली इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी कॉमन, आयरन सप्लीमेंटेशन लेंगे आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा। तो बिफोर प्रेगनेंसी अगर आप एनीमिक नहीं होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी एनर्जीज के साथ जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। थायराइड बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, शुगर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं, जब कंसेप्शन के लिए जाते हैं। इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी, माय टेक होम मैसेज यही होगा कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने जाते हैं तो आपको इस अवेयरनेस को अपने तक ही नहीं रखना है, इस अवेयरनेस को और भी फैलाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज तो मैं भूल ही रही थी, आजकल लाइफ स्टाइल में पार्टी कल्चर बहुत बढ़ रहा है, तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है। वी हैव टू, दिस इज एन एडवाइस टू कपल बोथ पार्टनर्स कि वी हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल प्री कंसेप्शनली, कि आपको ये दोनों चीजें छोड़नी है और प्रेगनेंसी के दौरान भी छोड़नी है। ये दोनों हम इससे एक हेल्दी प्रेगनेंसी ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो माय टेक होम मैसेज इज कीप योरसेल्फ हेल्दी, eat a well balanced diet, take folic acid supplementation prior to at least 3 months prior to pregnancy, because healthy moms deliver healthy baby. So take care of yourself. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for telling us such an important note that pregnancy is not the regular thing. You have to plan it. Definitely, it is a regular process for being a motherhood. It is not an easy thing, but plan it as you plan your marriage, as you buy your home, and similarly way you have to plan the pregnancy also. Thank you, ma'am, for telling us the important tips while going for the pregnancy. Now with us is Dr. Meenakshi Bansal. She is saying that if your child is going,
Are you also growing old, or you want to become young and remain young? So we'll learn the tips from Dr. Meenakshi Bansal on this topic, that how to keep yourself young while your child is growing. Ma'am. Namaskar. I wish all of you a very, very happy Women's Day. Today I will like to talk about how to grow young when your child grows up. To grow young, does it mean to look young only? No, it means to look young, to feel young, having positive energy in everything you do, thereby glowing young and growing young. हम सब जानते हैं कि हर एक लेडी अपने लाइफ में बहुत सारे माइलस्टोन्स क्रॉस करती है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, जॉब, फैमिली, करियर एंड चाइल्ड रेसिंग. And it becomes quite draining at times for a modern woman to cope up with all these demands. So, आज मैं आप सबको कुछ basic tips बताना चाहूंगी to cope up with all these demands and to remain in shape both physically and mentally. सबसे पहले, never miss your breakfast, as it kickstarts your metabolism and provides you a positive energy for the whole of the day. Second, to live well, eat well. अपनी पर्सनल डाइट रिक्वायरमेंट्स को कभी भी फैमिली के कारण कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. हस्बैंड की मीटिंग है, बच्चे ने पिज्जा खा लिया, मैं कुछ भी खा लूंगी. अवॉइड दीज हैबिट्स. इसके अलावा आई हैव सीन मेनी लेडीज who kill their urge and need for food. They don't take adequate nutrition. They avoid food, thereby feel drained and tired all the time and still not losing weight. So don't play with your meals. But yes, at the same time, I would say that cutting down the excess calories and munching habits are of utmost value. So, कैसे plan करेंगे? You can take the help of your doctor or dietitian in the beginning, but have a proper balanced nutrition diet. Next is drinking a lot of water. It keeps you hydrated and calm all the time, and also it makes you feel less hungry. 30 से 40 मिनट की exercise almost daily, you can say 5 days a week at least, is without doubt is essential for a healthy and fit body. And also, it evaporates your mood depressors and thereby keeps you elated all the time, and you feel young and look young. Next, do develop your social circles with family and friends. Helping, sharing, caring, and interacting with each other makes your self-confidence boosted up and you feel inner strength all the time. अक्सर लेडीज में ये आदत होती है कि दे ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग दैट एवरीवन एल्स आस्क ऑफ देम. मैं ये भी कर लूं, ये रह गया, वो भी करना था, and they put themselves under ridiculous amount of pressure, which becomes quite draining and it is very unhealthy and enhance aging. So choose to say no at times without feeling bad about that. Other, पूरे दिन की भागदौड़ में अपने लिए 10 से 15 मिनट जरूर निकालें, जो कि आपका स्ट्रेस आउट टाइम होगा या मी टाइम होगा. इसमें आप मेडिटेट करें, आंखें मूंद के बैठ जाएं एंड देन फील द डिफरेंस. 8 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है, सो एज टू make you energetic all the time at workplace and at home, at parties, at gym and in the market. Last but not the least, आपके लिए important है regular doctor checkups. She or he may prescribe you with antioxidants, iron, calcium supplements, and many micronutrients which are needed these days to make you immune, healthy, strong, and glowing. At last, I will say that taking care of yourself may take a bit of time, but a little bit of planning, motivation, and awareness can make you see yourself in a healthier, fitter, and younger body, mind, and soul. Thank you. Happy Women's Day to all. Thank you, ma'am. You have shared us that if your child is growing, so you also have to grow in terms of your beauty, your inner health.
If he is growing, you do not have to give up. You have to take it up. The way he is growing, you have to keep yourself growing in the way of your healthy mind, healthy body. So viewers, next time I really want to see you that taking care of you, and keep some time for yourself. My next is Dr. Kiran, and today she is going to tell us that how important is to do the health checkups or cancer screening, and how you can get rid of the illness which can harm you in the near time. So Dr. Kiran, please tell us that how our women can take care of themselves. Good afternoon, Gaganji and my dear friends who have all logged in to see us and hear about the tips we are giving to all of the women, and hope all this exercise brings some insight to the things they want to do that can enhance their health. So my topic today is cancer screening. So can cancer be prevented? Well, कैंसर इज वन वर्ड जिसको सुनते ही हम सब लोग एक बार डर जाते हैं. तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इससे बच पाए, या जिससे हम इससे होने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकें? The good thing today is now the science is very advanced, and yes, we can. The two most common cancers which we as women face is cervical cancer and breast cancer. Cervical cancer यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर. ये ज्यादातर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स के कारण होता है, जिसके अगेंस्ट थैंकफुली आज हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है. जैसे हम बच्चों को टीकाकरण करते हैं जो कि उन्हें अन्य बीमारी से बचाता है, ये एक टीका ऐसा है जो हमें कैंसर से बचाता है. सो अगर हम ये टीका 9 से 16 साल के बच्चों में 2 डोजेस के लिए लगाएं तो हम अप्रोक्सीमेटली साल में 50,000 वुमेन्स को इस बीमारी से बचा सकते हैं. इट इज दैट रैम्पेंट, इट इज दैट इम्पोर्टेंट. अगर आपकी बेटी या लड़की 15 साल की उम्र को क्रॉस कर चुकी है तो भी हम कैचअप वैक्सीनेशन उसके बाद कर सकते हैं. उस समय उसके 3 डोजेस लगते हैं. 25 साल के बाद उसकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है. नॉर्मली इसकी एफिकेसी इज अराउंड 95 to 98%. इट इज दैट एफिकेशियस. बट even if after 25 we get it done, the efficacy is still good. So we can just get it done even after 25 till the age of 45 years. बाहर के देशों में ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ चुका है. इंडिया में भी इसकी प्लानिंग हो रही है, पर जब तक ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं आता, हम एज गायनेकोलॉजिस्ट वी ट्राई एंड प्रमोट वैक्सीनेशन सो दैट हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचा सकें. वैक्सीनेशन के साथ ही जो दूसरा हम काम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं वो है पैप स्क्रीनिंग या फिर HPV टेस्टिंग. ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अपने आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में कर सकती है. जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो चेकअप के दौरान ही एक पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू एक छोटा सा सैंपल हम पानी का ले लेते हैं जिसको हम टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं. अगर आप HPV टेस्टिंग करा रहे हैं तो आपको इसको हर 5 साल में एक बार कराना चाहिए. अगर आपकी टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आप यू कैन बी 99% श्योर कि आपको इस बीमारी से अभी कोई खतरा नहीं है. अगर आप सिर्फ पैप टेस्ट करते हैं, HPV टेस्टिंग आपके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में डॉक्टर के पास अवेलेबल नहीं है, तो यू गेट इट रिपीटेड एवरी 3 years. इससे होने वाले कैंसर के मामलों में बहुत ज्यादा कमी लाई जा सकती है. दूसरा कैंसर जो औरतों में ज्यादातर रहता है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का मेन जो मकसद होता है वो होता है लक्षण प्रकट होने से पहले उसे पकड़ना. अगर हम प्रारंभिक स्टेज में इसे पकड़ लेते हैं तो इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है. सो ऐसे में ज्यादातर अगर आप देखें ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम गांठ का होना होता है. तो कोई भी स्त्री स्नान के समय या नॉर्मल ड्रेसिंग के समय सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू ये इसको डिटेक्ट कर सकती है. अगर आपको सामान्य से कुछ भी डिफरेंट आपकी बॉडी में चेंज लगता है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. गायनेकोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में आपका एग्जामिन करने के बाद आपको मेमोग्राफी का एडवाइस कर सकती है. मेमोग्राफी इज अगेन अ वेरी सिंपल X-ray of breast tissue which is painless and the radiation is very less. So between 40 to 44 years of age, it is highly recommended. But after 45, you should annually have your mammography done till the age of 55. If your mammography have been negative, you can stop screening after that, or you can shift to 2-year screening. अगर इन केसेस अगर आपका छोटा सा भी इसमें कुछ चेंज होता है तो उसका क्योर पॉसिबल है. एंड
The treatment today available is very effective, and you can completely get over the disease, and definitely we can prevent the deaths related to the cancer in now our societies. So now on this Women's Day, what I'll say is we should enhance our knowledge, and we should take a pledge that each one should teach one. Every doctor, every lady who is aware of all these screening procedures should tell another lady, her friend, her sister, her mother about all the screenings available. They should not be ashamed of going and getting them screened. Rather, they should get a gynecologist checkup every 3 or 5 years and help them avoid this problem. So let's create an awareness regarding this cancer screening, and hope that India, every woman in India is cancer free, and let's hope we all the women have a happy and a healthy life. I guess that will summarize the screening procedure for these two cancers, Gaganji. Thank you, ma'am. Thank you for telling us that there is no shortcut for any health, for your healthy life. You have to go with few steps, which today all the doctors have shared with you. Viewers, today with us is Priyanka. Priyanka is with us is a lactationist, है ना? Lactation counselor. Lactational counselor. And viewers, she is going to tell us today that gold is not what you wear it. Gold is what you give to your child to grow it. So she is going to tell us that breast milk, that is not less than a gold. So Priyanka, please tell us that how a woman or mother has to take care. Okay, thank you so much, Gaganji, for a wonderful introduction. And happy Women's Day to all the women who are watching this show and who might watch this later. All of us know, for all women, gold is really important. सभी को gold का शौक भी है, and it is really expensive. So it is important to understand ये topic जो है कि जो breast milk है, that is liquid gold for your baby. ये सिर्फ उन मदर्स के लिए नहीं है जो माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं, लेकिन ये सभी women के लिए है, because at some stage of life you will have a woman around you, you know, who's facing these issues with breastfeeding, या जिन्हें आप ये knowledge share कर सकते हैं. तो इसीलिए क्यों कहते हैं हम कि breast milk जो है वो liquid gold है आपके बच्चे के लिए. जैसे कि हम सब जानते हैं गोल्ड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत प्रेशियस होता है. इसी तरीके से व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उसकी इम्यूनिटी काफी लो होती है, बिकॉज बेबी इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इट इज न्यू टू द वर्ल्ड, not exposed to any kind of external environment. तो जैसे ही वो बाहर आता है उसकी इम्यूनिटी लो होती है. ये इम्यूनिटी जो एक न्यू बॉर्न को आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर सकता है, वो उसे कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी फॉर्म का मिल्क नहीं प्रोवाइड कर सकता. आपके ब्रेस्ट मिल्क में यू से इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एवरी मदर हैज, एंड इट्स एवरी बेबीज राइट. आपके ब्रेस्ट मिल्क में वो सभी पोषण होता है जो बच्चे को चाहिए होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीबॉडीज, एंटीवायरसेस, ग्रोथ फैक्टर्स, एंटी पैरासाइट्स. आज की डेट में जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही सर्वाइव कर पा रहा है. So this is the best gift a mother can give to the baby, because even if you are not with the baby lifelong, or if the baby has gone out to study somewhere, this immunity makes the baby strong for the entire life. इसीलिए हम breast milk को liquid gold कहते हैं. Then जो भी growth factors, जैसे कि अब बात करते हैं टॉप मिल्क की, कि बहुत मदर्स कहती हैं कि हमारे बच्चे का पेट तो टॉप मिल्क से भर जाता है, तो हम ब्रेस्ट फीड क्यों कराएं. सो ये समझना जरूरी है कि आप जैसे अपने बच्चे को जंक फूड की जगह हरी सब्जियां देना प्रेफर करते हैं, उसी तरीके से जब हम बच्चे को टॉप मिल्क देते हैं, हम उसके लिए विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो भी इम्यूनिटी है बच्चे की वो किसी भी ऊपर के दूध में या किसी भी अदर फॉर्म ऑफ मिल्क में नहीं है. इसीलिए जब भी आप टॉप मिल्क का डब्बा भी उठा के देखेंगे, उस पर यही लिखा होगा कि इम्पोर्टेंट नोटिस, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर द बेबी. सो ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, बहुत मदर्स समझ नहीं पाती हैं कि हमें मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा एज सुन एज दे डिलीवर. तो प्रेगनेंसी अच्छे से निकल गई, डिलीवरी अच्छे से हो गई, लेकिन बेबी हाथ में आ गया, अब क्या. इट इज आप ये चीज हमें पहले ही प्रेगनेंसी पीरियड में ही समझनी बहुत जरूरी है कि जो ह्यूमन मिल्क होता है वो बनता कैसे है, वो बॉडी में कैसे होता है, वो कैसे बढ़ता है,
और ये कॉन्फिडेंस मदर में होना बड़ा जरूरी है कि एज सून एज आई एम डिलीवरिंग माई चाइल्ड आई कैन ब्रेस्ट फीड। हर मदर जो भी डिलीवर कर रही होती है, शी हैज ब्रेस्ट मिल्क, बट उनको वो महसूस नहीं होता है। तो अब जैसे वी कैनॉट सी गॉड बट वी बिलीव इन दैट, सिमिलरली यू हैव टू बिलीव दैट यू आर लैक्टेटिंग and your job is to put the baby to breast like every 2.5 hours as the baby, or 3 hours, or as per the baby's demand as soon as the baby is born. ये जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है ये हार्मोन से बनता है, जिसे क्योंकि हमारी जितनी भी मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो भी यही चीज कहती हैं कि खाने पीने से दूध बनता है। तो देखिए, खाना पीना आपको एनर्जी देता है, मदर को कैलोरीज देता है, क्योंकि डेली की 500 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो मदर को एक फायदा और होता है ब्रेस्ट फीड कराने से कि वो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है उसका। तो जो मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है 6 months, वो ऑलरेडी शेप में आ जाती है काफी हद तक पोस्ट डिलीवरी, जस्ट विदाउट एक्सरसाइजिंग। 1 hour एक्सरसाइज के बराबर है 500 कैलोरीज, तो जस्ट बाय ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये समझना जरूरी है कि खाना पीना आपको वो कैलोरीज देता है जो कि आपको मिल्क पिलाने के टाइम पे चाहिए होती है। मदर वीक फील नहीं करती है, लेकिन मिल्क जो है वो एक्चुअली फॉर्म होता है हार्मोन से, जो कि आपकी बॉडी में हाई लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं जब आप डिलीवर करते हैं। और फर्स्ट 3 days जो आपको येलो, जैसे हम गोल्ड कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कोलोस्ट्रम मिल्क जो होता है, वो फील नहीं होगा, लेकिन जब बच्चा आपकी ब्रेस्ट पे सकल करेगा, बेबी विल गेट दैट मिल्क, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। और जितना ज्यादा बच्चा सकल करेगा, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होके, खुश होके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगी, उतना ज्यादा आपका मिल्क बनेगा। तो ये कंसेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज व्हाट मदर्स फील इज कि मिल्क नहीं आ रहा है तो हम उसको ऊपर का दे देते हैं। अब वो ऊपर का देने के बाद बच्चा ऑलरेडी हंग्री नहीं है, तो नेचुरली द बेबी विल नॉट टेक मदर्स मिल्क, विल नॉट सकल ऑन टू द ब्रेस्ट। तो वो मिल्क सप्लाई बढ़ेगा कैसे? तो वो विशियस सर्कल बन जाता है। इवन इफ यू फील दैट यू आर टायर्ड, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि एवरी 3 hours यू पुट द बेबी टू ब्रेस्ट, चाहे उसके बाद आप टॉप मिल्क दे दो, लेकिन वो जो सक्लिंग का स्टिमुलस है बच्चे का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो लिक्विड गोल्ड है, जो फर्स्ट 3 days मिल्क आता है, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बेबी के लिए, जो कि बच्चे को बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी देता है, जो शायद बच्चे को किसी और चीज से ना मिले। तो इसीलिए व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, टेक मोर नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, टेक एंटीनेटल काउंसलिंग, गेट योर ब्रेस्ट चेक्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि बाद में आप कॉन्फिडेंट हो फीडिंग करवाने के लिए। और जितनी भी विमेन हैं ओवर हियर, अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके सराउंडिंग्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज को फेस कर रही हैं, या फिर जिनको यही डाउट्स हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, या फैमिली कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज गेट प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम लैक्टेशन काउंसलर्स। एंड विशिंग यू ऑल मदर्स के लिए भी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और मदर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है ब्रेस्ट फीड कराना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हर किसी को वेट लॉस चाहिए होता है, और बिना मेहनत किए सिर्फ ब्रेस्ट फीड करा के वेट लॉस हो रहा है, तो what better it can be. And secondly, breast cancer का रिस्क कम होता है। जो mothers breast, I was coming to that. Breast cancer risk is also reduced by breastfeeding, so it's very good for the women too. Yeah, so if you have in your history, in your genetics that दादी नानी किसी को कैंसर हुआ है, तो surely go for breastfeeding, as उसका रिस्क काफी कम हो जाता है। और मदर्स के भी मूड स्विंग्स, हार्मोनल इश्यूज काफी कम होते हैं जब वो बच्चे को कॉन्फिडेंटली फीड करा पा रही होती है। पोस्टपार्टम ब्लूज नहीं होते जब वो बच्चे के साथ कॉन्फिडेंट होती है। तो ये चीजों से निकलने में ये जो नेचुरल प्रोसेस गॉड ने बनाया है ब्रेस्ट फीडिंग का, बहुत हेल्प करता है। So that's all for my topic. Yes, thank you so much. And side by side, all mothers should take calcium supplementation when they are feeding. It is not very important. During antenatal checkups you have been taking calcium. When you are producing calcium milk and you are not taking calcium, it is definitely going to have effect on your bones, and it will be rarefied, and you will have a more tendency to have fractures in your later age. So calcium supplementation should always be continued when you are feeding. Exactly, ma'am. So very rightly said.
I have had mothers who have joint pains because they are breastfeeding the baby, but they discontinued. They did not listen to their gynaes and doctors, and they discontinued calcium. So the baby will take all the calcium from the body through your milk. If you are not having calcium supplements, then you will face lot of issues, lot of pains, and you will not be that active. So Dr. Ruby said rightly that calcium and iron supplementation is equally important postpartum as it is during the antenatal period. As you Thank forget yourself, after once you have delivered, you forget that you also have to take something which is important for your health. And moreover, if you are taking calcium, it is going to the baby's milk also. So giving calcium supplementation to the baby side by side. थैंक यू मैम. आई थिंक आज सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली है हर एस्पेक्ट पे, हर शेड्स पर. तो थैंक यू मैम. जो आपने इंफॉर्मेशन दिया, आप हमें जरूर इसके लिए एक टॉपिक पे आप हमें देंगे तो हमारे व्यूअर्स को और अच्छा लगेगा. बट रियली थैंक यू फॉर शेयरिंग अस सच ए इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स फॉर ऑल द वुमेन्स ऑफ द ग्लोब. एंड वी विश you all a very happy, healthy and prosperous life ahead, and you also take care of us as well. And thank you for joining us, ma'am, and sharing so important tips to us, and wishing you all a very happy Holi as well, which is coming very in a few weeks of time. And from our side, wish you all very happy Holi to all viewers and to you as well, ma'am. Thank you. Thanks, Gagan. Thank you, Gagan. Thank you for sparing the time for us and for our viewers. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Dr. Kiran is with us, ma'am. मैम हमेशा आपसे कोई ना कोई एक सॉन्ग सुना है. जाते जाते क्यों ना इस प्रोग्राम को एक सॉन्ग से हम फिनिश करें. So if we all have a time for 2 minutes, so we can request Dr. Kiran to sing a song for all the women of the globe. Gaganji, I think the best song I can think of at this time is as we doctor and women, we plan to take every woman together in our life towards a journey of health. So I will say some few words. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले. Gagan is here. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Happy Women's Day once again. Same to all of you. Thank you. Thank you. Thank you so much.